In today's video, we are going to start the second chapter of math, that is polynomials. This chapter was there in class 9th. We studied the basics there, and now we are going to go a little advanced in this chapter. Okay, so we'll discuss the topics of this chapter and then we'll start the exercise. So in class 9th, we saw polynomials in one variable. We saw monomial having one term. We saw binomial having two terms, trinomial having three terms. Then we saw zeros of a polynomial. Then we saw the remainder theorem. We saw the factorization of polynomial and the identities was there. The lesson was very huge in class 9th, but in class 10th it is not that much huge. It's very short lesson and very easy also if you pay attention. Okay, so I will explain you in so detail so that you understand it properly. So just pay attention here. We are starting now, and we'll just revise what we had studied in class 9th. We'll start with that and we'll then come what we are going to see in class 10th here. Okay, so first we'll start with the definition of degree. This is we have seen in class 9th. So that is, what is the meaning of degrees? The highest power of x in p of x is called the degree of the polynomial p of x. Okay, डिग्री का डेफिनेशन क्या कहता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ x. किसका हाईएस्ट पावर? x का. x क्या है यहाँ पे? x is the variable. Okay, in mathematical term what do we say this x as? This is a variable, the unknown term. Okay, in p of x, this is what p of x means. This is the way we indicate a polynomial. Okay, polynomial को हम p of x, q of x, r of x इससे indicate करते थे class 9th में. Okay, remember that thing. So here it is an indication of polynomial, and what is written in the bracket is x, which is the variable. जो bracket के अंदर लिखा है वो क्या indicate कर रहा है? That is the variable used in the polynomial. Okay, in class 9th we studied about polynomial in one variable, and here in class 10th also we are going to study about polynomials in one variable only. एक ही variable होगा एक polynomial में. Okay, x हो सकता है, y हो सकता है, whatever, but एक ही variable होगा. Okay, so the highest power of x in p of x is called the degree of the polynomial p of x. means what? कि सपोज कि कोई पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल x यूज़ हुआ है, तो उस x का जो हाईएस्ट पावर होगा, ओके, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ दैट गिवन पॉलिनोमियल. ओके, यहाँ पे एग्जांपल से हम कुछ समझेंगे तो हमको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा. जैसे कि यहाँ पे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है, डेट इज़ 4x + 2. ओके, 4x + 2 इज़ द पॉलिनोमियल. तो यहाँ पे वेरिएबल देख सकते हैं कि x इज़ द वेरिएबल. ठीक है, अब x का पावर क्या है? यहाँ पे x का पावर, यहाँ पे पावर कहाँ पे होता है? यहाँ पे. ओके, पावर भी कहते हैं या एक्सपोनेंट भी कहते हैं. सो व्हाट इज़ द पावर हियर? हियर इज नथिंग रिटन. मीन्स यहाँ पे कितना पावर है? 1. व्हेन द पावर इज़ 1 वी डोंट राइट 1, राइट? हम 1 से लिखते नहीं हैं, मतलब यहाँ पे पावर है 1, और सिर्फ एक ही जगह पे वेरिएबल है और कोई जगह पे नहीं है इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में. मतलब हाईएस्ट पावर जो है यहाँ पे 1 है. दैट इज़ द डिग्री इज़ 1 ईयर. ओके, द डिग्री इज़ 1 ईयर. देन let's look in this polynomial. It is 2y² + 3y - 4. What is the variable used here is y. Y is the variable. Now look here in this term, the power of this term is what? 2. Power of this term is 2, y². तो यहाँ पे पावर 2 है. यहाँ पे कितना है पावर? y के ऊपर कुछ नहीं लिखा है, डेट मीन्स पावर इज़ 1. ये तो कांस्टेंट टर्म है. तो अब यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, तो मैक्सिमम पावर कौन सा है? यहाँ पे हाईएस्ट पावर इज़ 2. दैट मीन्स द डिग्री इज 2. ओके, देन थर्ड वन, दैट इज 2x⁵ + 6x⁵ - 3x⁴ + 2x + 1. So in this polynomial the variable is x again. The power here is 5, the power here is 6, the power here is 4, the power here is 1, and the power here is 0. That means here it is the constant term. So what is the highest power in this whole polynomial is? Here is the highest power. सबसे बड़ा पावर कहाँ पे है? यहाँ पे है. So the degree of this polynomial is 6. Okay, so simply the highest power of x, किसी भी particular polynomial में जो भी variable है उसमें जो highest power होगा that will be called as what? The degree of the polynomial. Clear? Okay. So now we are going towards the types of polynomials, and the types of polynomials that we are going to see now is on the basis of their degree. डिग्री के बेसिस पे अब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखिए. तो अभी जो हम देखने जा रहे हैं यहाँ क्लास 10th में, वहाँ पे 3 टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स है. दैट इज़ लीनियर पॉलिनोमियल, quadratic polynomial and cubic polynomial. Okay, was there in class 9th too. Linear polynomial,
quadratic polynomial and cubic polynomial. So what information shall we know about linear, quadratic and cubic polynomial is, we must know about their degree, we must know about their standard form, their graph, number of zeros and examples, so that we understand what are the types of linear polynomial, quadratic polynomial and cubic polynomial are. Okay, so starting with the degree. As we saw, degree is what? Degree is the highest power of the variable in a particular polynomial. Okay, so the degree of linear polynomial will be, liनियर polynomial का जो डिग्री है वो रहेगा 1, क्वाड्रेटिक polynomial का डिग्री रहेगा 2, क्यूबिक polynomial का डिग्री रहेगा 3. ओके, सिंपली इसका मतलब क्या है? हाईएस्ट पावर लिनियर polynomial का 1, हाईएस्ट पावर क्वाड्रेटिक का 2 और हाईएस्ट पावर क्यूबिक का 3 रहेगा. सिंपल, linear means 1, quadratic means 2 and cubic means 3. Fine. Now talking about the standard form. The standard form of linear polynomial is ax plus b का फॉर्मेट रहेगा, ax plus b. Now here x is what? X is the variable. X क्या है? Variable. What is a and b? A and b belongs to R. This is what belongs to a, b belongs to R. What is R here? R means real numbers. Okay, chapter 1 जो हमने पढ़ा real numbers. ए एंड बी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, कोई भी, डेट मीन्स रेशनल भी हो सकते हैं एज वेल एज इरेशनल भी हो सकते हैं. ओके, एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, मगर ए जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता. ज़ीरो के अलावा और कोई भी रियल नंबर होता है बट ए ज़ीरो नहीं हो सकता. क्यों ए ज़ीरो नहीं होगा? क्योंकि ए अगर जो ज़ीरो हो जाए तो ये वाला टर्म पूरा यहाँ से आउट हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा ही नहीं ये टर्म, राइट? जीरो इंटू एनीथिंग डेट मीन्स जीरो. तो ये टर्म ही जब निकल जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ एक बी, एक कांस्टेंट नंबर, एंड डेट विल नॉट बी ए लीनियर पॉलिनोमियल. ओके, नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेर a b c बिलोंग्स टू व्हाट? r. ओके, यहाँ पे क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और ये a b c अगेन r है, और अगेन a क्या है? a इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि जो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो जो ज़ीरो नहीं हो सकता, ज़ीरो के अलावा और कोई भी नंबर हो सकता है. सिमिलरली क्यूबिक के लिए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ए बी सी डी, ये ए बी सी डी चारों के चारों रियल नंबर हो सकते हैं, मगर ए अगेन ज़ीरो नहीं हो सकता. तो बहुत ही सिंपल है यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म को याद रखने को. सिंपली आपको ए बी सी डी तो आती ही है, और यहाँ पे क्या करना है? वेरिएबल का जो डिग्री है वो उसको सिर्फ डिक्रीसिंग फॉर्म में लिखना है. जैसे कि यहाँ पे डिग्री 1 है तो सिंपली x, यहाँ पे डिग्री क्या है? 2 है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग विद द वेरिएबल्स पावर 2, 2 के बाद 1, फिर सिंगल कॉन्स्टेंट टर्म. देन यहाँ पे डिग्री क्या है? 3, तो 3 फिर 2 फिर 1 एंड फिर नथिंग, और ए बी सी डी आगे लगा दिया सिंपली. ओके, अभी सपोज कि इसके बाद जो फोर्थ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है जो अभी फ़िलहाल सिलेबस में नहीं है, दैट इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री होता है 4, उसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना हो तो क्या करेंगे? हम 1 से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट टर्म का जो पावर रहेगा दैट विल बी 4. So that is ax raised to 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e. Okay, that is what the standard form of quadratic polynomial. But हमको अभी यहाँ पे नहीं देखना है, आपको ये तीनों का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे याद रखना है वो पता होना चाहिए. ठीक है. देन इफ़ यू टॉक अबाउट द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल्स, अगर हम कोई भी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का ग्राफ में शो कर दे, उसके जो वैल्यूज़ ज़ीरोज़ के अकॉर्डिंग हम उसका जो ग्राफ फॉर्म करेंगे तो उसका ग्राफ कैसा मिलेगा? जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन. ओके, वो ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा. देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो कैसा रहेगा? दैट इज़ इन द शेप ऑफ पैराबोला. ओके, पैराबोला मीन्स इस तरह से शेप होगा. ओके, जैसे कि ये x है, ये y एक्सिस है, तो इस तरह से हो सकता है, या फिर इस तरह से हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, इस एक्स एक्सिस के नीचे भी हो सकता है. दैट इज़ नॉट द मैटर, बट द शेप विल बी ऑफ लाइक दिस इज़ द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा रहेगा? क्यूबिक के लिए समथिंग लाइक एस शेप का रहेगा. एस शेप, जैसे कि मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं तो सपोज़ कि ये एक्स और वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे इसका ग्राफ जो है वो ऐसे हो सकता है, राइट, या फिर ऐसे हो सकता है. ओके, इस तरह से कुछ ग्राफ रहेगा. ये भी सिमिलरली ऊपर नीचे हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि एक्स को क्रॉस करे ही. तो इस तरह से शेप रहेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल की ग्राफ का. ठीक है. नाउ नंबर ऑफ zeros, बट बिफोर लुकिंग एट द नंबर ऑफ zeros ऑफ दिस 3 टाइप्स ऑफ polynomial, what is a zero called as?
A real number k is said to be a zero of a polynomial p of x if p of k is equals to 0. कोई भी एक नंबर है, सपोज कि कोई भी एक रियल नंबर है जिसको हम k से यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, उसको हम ज़ीरो कब कहेंगे? एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का उसको हम ज़ीरो कब कहेंगे? जब हम यहाँ पे p ऑफ x यानी कि जो वेरिएबल है, ओके, जो भी पॉलिनोमियल है उसके वेरिएबल के जगह पे हम रखते हैं वो वैल्यू, ओके, वो जो नंबर है रियल नंबर उसकी वैल्यू रखते हैं, और जब हम उसे सॉल्व करेंगे और आंसर जो है ज़ीरो मिलेगा तो डेट विल बी कॉल्ड एज ए ज़ीरो ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, ओके। सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ये एक पॉलिनोमियल है 2x माइनस 6, ओके, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6 इज द पॉलिनोमियल। बट सपोज कि यहाँ पे मैं x के जगह पे, ओके, x के जगह पे मैं रखता हूँ 3, तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा 2 इंटू एक्स यानी कि 3 माइनस 6, दैट इज़ 2 3 द 6 माइनस 6, व्हाट आई एम गेटिंग द आंसर एज 0। मुझे आंसर क्या मिला? 0। तो कब मुझे ये आंसर मिला 0? जब मैंने x के जगह पे क्या वैल्यू रखी? 3। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का 0 3 है, ओके, क्योंकि 3 रखने से मुझे आंसर 0 मिला, तो दैट इज़ व्हाट द 0 इज़। तो यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल के कितने 0 हो गए? एग्जैक्टली 1 0 हो गए। सिर्फ और सिर्फ एक ही 0 होगा लीनियर पॉलिनोमियल का, सिर्फ एग्जैक्टली 1 मीन्स ओनली 1, ओके। जैसे कि यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के लिए 3 इज़ द 0, 3 के अलावा आप कोई भी नंबर यहाँ पे रखो आपको कभी भी आंसर 0 नहीं मिलेगा, बिकॉज इसका एक ही यूनिक सॉल्यूशन है एग्जैक्टली 1, दैट इज़ 3, ओके। तो ऐसे कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल हो उसका 0 ऑलवेज एग्जैक्टली 1 रहेगा। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस आर एटमोस्ट 2, एटमोस्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 जो है वो 2 हो सकता है, 2 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, ओके। 1 इज़ पॉसिबल, एक 0 हो सकता है, दो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम 2 से कम होगा मगर 2 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। एटमोस्ट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा, सो 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी 0 हो सकते हैं, मगर 2 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल द नंबर ऑफ जीरोस आर 3, एटमोस्ट 3 जीरोस, 3 से ज़्यादा जीरोस पॉसिबल नहीं है। 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, मगर 3 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जितना डिग्री होगा उतना ही मैक्सिमम जीरोस पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल सपोज़ कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसका डिग्री है 5, जिसका डिग्री है 5, तो मैक्सिमम उसके कितने जीरोस पॉसिबल होंगे? यस, राइट, दैट इज 5 zeros विल बी पॉसिबल देयर बिकॉज द डिग्रीज आर 5। सो जितना डिग्री उतना मैक्सिमम जीरोस पॉसिबल रहेगा, ओके। यहाँ पे एग्जांपल्स देख लो, √3x + 5, x - 2, 3z + 4, यहाँ पे सभी एग्जांपल में आप देख सकते हो डिग्री कितना है 1, और यहाँ पे ये जो भी नंबर है वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 2x² + 3x - 2, y² - 2, 2 - x², यहाँ पे भी ये तीनों एग्जाम्पल में देखो तो डिग्री कितना है 2। नाउ फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ + 2x² + 4, √3x³ + 2 एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे डिग्री कितना है 3। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट यू मस्ट नो अबाउट पॉलिनोमियल्स, बिकॉज एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सपोज़ कि किसी के डिग्री के बारे में पूछ लिया, किसी के ग्राफ के बारे में पूछ लिया, किसी का स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पूछ लिया, या फिर किसी के नंबर ऑफ़ जीरोस के बारे में पूछ सकते हैं। सो ये आपको इन्फॉर्मेशन समझना है और अच्छे से याद रखना है।